Hello, students. So now I'm going to start the poem, The Schoolboy. Okay. So this poem is given just after the fifth chapter, that is the Summit Within. Okay. So I think when the classes were going on offline, so we had finished one or two stanzas. Okay. But I think you must we'll start from the first line, because I think you have been forgotten the lines that you had studied that time. So we'll start from the first line. Okay. So this poem is written by William Blake. Okay. And this actually expresses the thoughts of a schoolboy. Okay. And I can say straightforwardly that this is showing your ideas, your thoughts, your conditions is expressing, is being expressed in this poem. Okay, so let's start the poem. The schoolboy in the poem is not a happy child. What make him unhappy? Okay, the schoolboy which is mentioned in this poem is not a happy child. So what made the child unhappy? Okay, why does he compare himself to a bird that lives in a cage? So the boy is comparing himself as a bird that lives in a cage, or a plant that wither when it should blossom. Wither means मुरझा जाना. Okay, dry. ठीक है. So a flower when the time is about to blossom, and in that time the flower is um, withers. Okay, what is the reason behind that, and why the schoolboy is not happy, and he is comparing himself as a withering flower or a bird that is in the cage. Okay, so I love to rise in a summer morn. Okay, the boy is saying that I love to rise in a summer morn when the birds sing in every tree. The child loves to wake up in the early morning during the summer. He loves the summer morning. The distant huntsman, when the birds are singing in the early morning, and we also hear the chirping sound of the birds in during the morning. Okay, the distant huntsman winds his horn. Winds means blows. Okay, blows his horn. The huntsman means the man who catches birds and all. ठीक है, जो बहेलिया होता है या फिर जो शिकारी होता है, जो चिड़िया पकड़ता है, he winds his blows his horn. ठीक है, कि मॉर्निंग हो गया, and now I'll do that. And the skylark sings with me. और skylark is a bird. Okay, so skylark जो है वो सिंग करती है, गाना गाती है मेरे साथ. ओ व्हाट स्वीट कंपनी. कह रहा है कि वाह कितना मजेदार, कितना स्वीट कंपनी होता है ये. हाउ स्वीट कंपनी इज दैट विद दैट skylark, singing with skylark. Okay, but to go to school in a summer morn, it drives all joy away. But in the same summer morning, going to school, it takes away all the joy. ठीक है, सारे जो भी जॉय है, जो खुशी है, वो सबका कचरा हो जाता है जब सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है. अंडर अ क्रूएल आई आउट वॉर्न. ठीक है, अंडर अ क्रूएल आई आउट वॉर्न मीन्स होता है ओल्ड, वही पुराने. और क्रूएल आई मीन्स हियर क्रूएल आई इज डिपिक्टिंग द टीचर्स. ठीक है, उन्हीं पुराने क्रूएल आइज, पुराने टीचर्स जो सालों से चले आ रहे हैं. ठीक है, मीन सालों से होता चला आ रहा है कि स्कूल जाते हैं और टीचर्स फिर डांटते हैं. दे गिव होमवर्क, दे टीचर्स दे गिव होमवर्क, दे पनिशर एंड ऑल दोज थिंग्स. ओके, सो हियर क्रूएल आइज इज रिप्रेजेंटिंग द टीचर्स. So under a cruel eye out one, the little one spend the day, and whole day we have to spend in the under their what, इन द देयर गाइडेंस. ठीक है, वो हमको देखते रहते हैं अंदर देयर आई. ठीक है, उनके आंख के सामने ही हमें पूरा दिन बिताना पड़ता है. इन साइंग एंड डिसमे. ठीक है, आह भरते हुए मीन्स इन सैडनेस. ओके, एंड इन डिसमे मीन्स डिस्ट्रेस, अपसेट. डिसमे मीन्स
डिस्ट्रेस या फिर अपसेट यू कैन से, ठीक है। उसी तरह से अपसेट और डिस्ट्रेस में ही पूरा दिन जो है वो गुजरता है। दिस टेक्स अवे ऑल द जॉयज ऑफ द मॉर्निंग एंड ऑल। देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट, ड्रूपिंग मीन्स बो डाउनवर्ड, बो डाउनवर्ड limp oh then at times I drooping sit and spend many an anxious hour, ठीक है। anxious means sad hours you can say, कि ऐसे सिर झुका करके बैठ जाना, ठीक है। drooping sit, झुके हुए बैठना, एंड देन स्पेंड मेनी एंड एंसियस आवर, कई घंटे बिताना वहाँ पे जो है। इट्स लाइक इट इज ड्राइवन अवे ऑल द joy all the happiness, nor in my book can I take delight, और मैं अपने बुक में भी कोई डिलाइट हमें नहीं मिल रहा है। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट नॉर सिट इन लर्निंग्स बोअर, ठीक है। ना ही मुझे बुक में इंटरेस्ट आता है और ना ही लर्निंग बोअर मीन्स एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यू कैन से एन स्कूल, स्कूल या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। He's saying that कि nor sit in sorry nor in my book can I take delight, I can't take delight, I can't take happiness in my books, even I can't take in the learning bores, means learning bores में भी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मीन्स स्कूल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। इंटरेस्ट किस में आता है? स्काई लार्क की तरह गाना गाने में आता है, ठीक है। हंसने खेलने खाने में आता है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, कह रही है कि वो चिड़िया, हाउ कैन द बर्ड which is born to fly over the sky, who is born to fly in the sky to cover the whole sky, and if she is caught into the cage, अगर वो उसको केज में बंद कर दिया जाए पिंजड़े में, सो हाउ कैन शी सिंग, वो चिड़िया कैसे गाना गा सकती है। दैट इज द सेम कंडीशन इज गोइंग ऑन विद मी, कि मुझे जो चहचहाना मुझे पसंद है, मुझे खेलना खाना कूदना पसंद है, और मुझे आप क्या कर रहे हो कि जेल की तरह ले जा करके स्कूल में डाल दे रहे हो। सो हाउ कैन आई टेक डिलाइट इन ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, मैं उसमें कैसे खुश रह पाऊंगा। सेम थिंग लाइक हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, जो इंजॉय करने के लिए पैदा हुई है, बर्थ की हुई है, ली हुई है, सिट इन अ केज एंड सिंग, वो पिंजड़े में कैसे बैठ के गा सकती है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय बट ड्रूप्स हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, कह रहा हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय, जब कोई बच्चा अगर डर रहा हो, किससे, फियर्स अनॉय, ठीक है, जब उसे गुस्से नाराजगी या पनिशमेंट का डर हो, जिस बच्चे को पनिशमेंट का डर हो और गुस्से का डर हो, फियरफुल हो, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, लेकिन उसके विंग को क्या करना है, झुका देना है, ठीक है, उसकी पंखे आप काट दो, यू कैन से कि आप उसके पंखों को क्या, टेंडर जो मासूम पंख हैं, ठीक है, जो मासूम उसके पंख है, आप उसको तोड़ दो, उसको गिरा दो, एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और क्या करेगा वो, अपना फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और जो जब उसके ग्रोथ का टाइम था, स्प्रिंग मीन्स इंजॉय का टाइम, स्प्रिंग सीजन इज कंसिडर फॉर द इंजॉयमेंट, ठीक है। इन पोम्स एंड इन रियलिटी टू द स्प्रिंग सीजन इज कंसिडर्ड फॉर द एंजॉयमेंट, तो कह रहा है कि जब उसके यूथफुल के डेज हों, यूथफुल के डेज किस लिए होते हैं बेटा, इंजॉयमेंट के डेज कंसीडर किए जाते हैं, तो जब उसके खेलने खाने के दिन हैं और आप उस पर लाद दे रहे हो जिम्मेदारियां, व्हेन यू आर forcing him with the responsibilities and of the learning and all these things, so why could he not लॉस हिज जॉय, ठीक है, वो अपने जॉय कैसे नहीं भूल जाएगा, ठीक है, उसको कैसे मजा आएगा, कैसे वो इंजॉय कर पाएगा अपनी लाइफ को, ठीक है। तो अपने जो यूथफुल स्प्रिंग है वो ऑफ कोर्स भूल ही जाएगा वो। एंड ऑलमोस्ट यू ऑल्सो थिंक दैट, है ना, यू ऑल्सो थिंक द सेम थिंग दैट यू कम डेली इन द स्कूल एंड यू आर गिवन लॉट ऑफ होमवर्क्स एंड प्री रीडिंग एंड ऑल, एंड यू से द सेम थिंग कि हाउ कैन आई how can we play, how can we enjoy our life and all, so same thing is expressing here too, okay।
then the child is requesting his parents. Okay, he is asking to his parents in request manner that, oh father and mother, if birds are nipped, nipped means destroy earlier, meaning of nipped, destroy in early stage. कह रहा है कि ओ फादर एंड मदर, ओ मम्मी और पापा, इफ बर्ड्स आर निपिड एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, ठीक है, कह रहा है कि अगर कलियों को, बर्ड्स मीन्स ग्रोइंग फ्लावर, ठीक है, अगर बर्ड्स को उनके बड़े होने से पहले, फ्लावर में कन्वर्ट होने से पहले अगर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उन्हें तोड़ दिया जाए, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, तो वो ब्लॉसम खिल पाएंगे नहीं, तो वो खिल नहीं पाएंगे, खिलना अगर उनसे दूर कर दिया जाए। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, और जो प्लांट्स हैं उनके, जो टेंडर प्लांट्स हैं, जो अभी ट्री नहीं हुए हैं, जो अभी बड़े नहीं हुए हैं, उनको अभी ग्रोथ का समय है, उनके एंजॉय का टाइम है, एंड अगर इफ वी स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड मीन्स टेकन अवे, यू कैन से, ठीक है, उनको तोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर उनको तोड़ दिया जाए, ठीक है, टेंडर प्लांट्स को, ऑफ देयर ज्वाइन द स्प्रिंगिंग डेज, जब स्प्रिंग करने के डेज हो और उनके ग्रोथ का टाइम हो, और उसको क्या किया जाए, उसको हम तोड़ दें अगर, ठीक है, सो बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे, और उसको बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे और डिस्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, सो समर में जॉय कैसे ले सकते हैं, ठीक है, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, या फिर समर में जो फ्रूट्स अपीयर होने चाहिए, जैसे समर टाइम पे क्या होता है कि मैंगोज के मान लो फ्लावर्स लगते हैं, ठीक है, एंड अदर फ्यू अदर प्लांट्स आल्सो फ्लावर्स इन दैट टाइम, ठीक है, तो अगर उनके फ्लावर्स को हम बड़े, अगर बर्ड्स को ही हम अगर स्ट्रिप निप्ट कर दें, उसको बर्ड्स को अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें, या फिर पौधे पर से ही उनको हम तोड़ दें, तो वो पौधे बाद में ट्री कैसे बनेंगे, या फिर उनके फ्रूट कैसे मिलेंगे आपको, ठीक है, आपको फल कैसे मिलेगा, दैट इज द क्वेश्चन विद फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो वही कह रहा है कि अगर आप बच्चे को उसके लाइफ से दूर कर दोगे, इफ यू आर फोर्सिंग हिम एंड प्रेशराइजिंग हिम टू डू अ लॉट ऑफ लर्निंग एंड ऑल थिंग, टू स्टडी एंड ऑल दिस थिंग, if you forcefully want to make him engage in the learning, in the study, so how can he grow, ठीक है, वो बड़ा कैसे हो सकता है, वो डेवलप कैसे कर पाएगा, खुद को डेवलप नहीं कर पाएगा। सो दैट इज द थिंग दैट स्कूल बॉय वांट्स टू आस्क एंड वांट्स टू express his feelings and all. Okay, so a few questions are given here in exercise, so you have to do the question and answer yourself and must send the PDF or your question answer in the group. Okay, okay, we will meet in next video. Thank you so much.